In the last lecture, that was acid base balance, I taught in that chapter about acid and base, strength of acid and base, about pH and pH scale. I taught you pure water pH and physiological pH, and I taught you about volatile acid, non-volatile acids, and Henderson-Hasselbalch equation, and also taught you regulation of pH of the body. There I discussed three mechanisms for regulation of body pH. Buffer mechanism, in which all four buffers I described in detail, and how the buffer regulate physiological pH, the bicarbonate buffer, phosphate buffer, protein buffer, and hemoglobin buffer. And the next mechanism, I described the respiratory mechanism, how respiratory mechanism maintain the body pH through the hypoventilation and hyperventilation. And third mechanism was renal mechanism, in which I told you bicarbonate mechanism, phosphate mechanism, and ammonia mechanism. Beside all this, that there was additional notes of alkali reserves and chloride ships. So this is a very important chapter in which so many questions may ask in the university examination. In the continuation of last lecture, today I will discuss on acid-base imbalance. Acid-base imbalance create mostly four disorders: metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, and respiratory alkalosis. These are four imbalance, acid-base imbalance, or disorders or acid-base imbalance. Beside this topic, we should know about the ABG, arterial blood gases. There is basically there is two type of gases which are present in arterial blood. We measured partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen, but there are so many parameters belongs to these PO2 and PCO2. So by the help of ABG, we calculate the all four disorders of acid base. We need three ABG components, that are pH, PCO2, partial pressure of carbon dioxide, and concentration of bicarbonate in the body fluid. So these three ABG components are very important to use in the analysis of acid-base imbalance. So before the enter into the acid-base analysis, we should know about the ABG sample collection and precautions. ABG sample collection site is radial artery, branchial arteries, femoral arteries. Sample is collected by the help of the pre-heparinized ABG syringes. Syringe should be flushed heparin solution and emptied. पूरा syringe खाली कर लेते हैं heparin से. Do not leave excessive heparin in syringe, and ensure no air bubble should be present in the syringe. This is the ABG syringe, a special type of syringe. It is the graduated up to the 3. We picked the blood up to the 2 marks. This is the needle cap, the needle, and it is the needle protective sleeve. So in this syringe, the blood is sucked up to mark 2 cc, and after that taking blood immediately, syringe must be sealed immediately after the withdrawing the sample. ABG syringe must be transported at the earliest to the laboratory for early analysis by the cold chain. Cold chain, it's necessary because these parameter was fluctuated when uniced sample
used in the lab or ice sample used in the lab. So this table is showing the some difference between the uniced sample at 30 degrees centigrade, 37 degrees centigrade and ice sample at 4 degree centigrade. pH deviated 0.01 in uniced sample and in ice sample is 0.001, very low. And PCO2 deviated 1 mmHg and in ice sample it deviated into 0.01 mmHg. PO2 0.1% and here it is deviated in 0.01%. So the syringe must be sealed. Sealed syringe should be reached in the laboratory by cold chain. Now component of the ABG are pH, bicarbonate and partial pressure of carbon dioxide. These three components are very important and the normal range of pH is 7.35 to 7.45. When pH goes below 7.35, the condition is called acidosis, and the pH beyond the 7.45, the condition is called alkalosis. Acidosis and alkalosis created by two more component. These component are metabolic component and respiratory component. So bicarbonate is the metabolic component and partial pressure of carbon dioxide, it is a respiratory component. When acidosis created by metabolic component, the condition is metabolic acidosis. When alkalosis created by metabolic component, the condition is called metabolic alkalosis. When acidosis created by respiratory component, the condition is called respiratory acidosis. When alkalosis created by respiratory component, the condition is known as respiratory alkalosis. So let us see, this bicarbonate is a metabolic component. When its normal range is 22 to 26 millimole per liter. When the concentration of bicarbonate goes below 22, pH become low. So the condition is called metabolic acidosis. When bicarbonate component is go beyond the 26 millimole per liter, the pH become high. So condition is called metabolic alkalosis. In respiratory condition, when partial pressure of carbon dioxide, this is the normal range of partial pressure of carbon dioxide is 35 to 45 mm of Hg. When the PCO2 concentration goes below 35, that pH become high. So the condition is called respiratory alkalosis. When PCO2 goes beyond the 45 mm of Hg, pH become low. The condition is alkalosis, acidosis. So the condition is called respiratory acidosis, because PCO2 is directly proportional to carbonic acid. When PCO2 increase in our blood, carbonic acid will increase. So carbonic acid will increase, that means hydrogen concentration will increase in the body. That means pH will go down. That condition will be acidosis. Okay. So PCO2 will increase beyond 45. That means carbonic acid will increase. Carbonic acid will increase. That means hydrogen concentration will increase. The condition will be acidosis. That means beyond PCO2 45, this is called respiratory acidosis. And the below 35 PCO2 is known as respiratory alkalosis. क्यों? क्योंकि PCO2 जब कम होगा, that means कार्बोनिक एसिड भी कम होगा. कार्बोनिक एसिड कम होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा. हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगा तो pH बढ़ेगा. pH बढ़ेगा तो कंडीशन विल बी alkalosis. That means respiratory alkalosis. Okay, let us see later. Now disorder of acid base balance occur
दो कारणों से एसिड बेस बैलेंस हो सकता है। व्हेन रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल टू मेंटेन पीएच, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो बॉडी में पीएच मेंटेन करती हैं या तो वो डिस्टर्ब हो जाए। कौन कौन सी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है? आई टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर देयर आर buffer mechanism, respiratory mechanism and renal mechanism. These are the three mechanism which maintain our body pH. When any one of related or anyone these regulatory mechanism fail to maintain the pH, or when the bicarbonate or carbonic acid ratio deviated from 20:1. जब हेंडरसन-हेसेल इक्वेशन हम पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको बताया था हेंडरसन-हेसेल इक्वेशन होती है pH = pK प्लस log into acid upon base, बेस अपॉन एसिड। तो बेस क्या है? बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। तो बेस और कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का रेशियो यदि प्लाज्मा में 20:1 है, दैट मीन्स पीएच विल बी मेंटेन 7.4। इफ द रेशियो इज डेविएटेड 20:1, द पीएच विल बी डिस्टर्ब। तो व्हेन बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड रेशियो डेविएट होगा तो पीएच भी डिस्टर्ब होगा। पीएच डिस्टर्ब होगा तो कंडीशन विल बी क्रिएट एसिड बेस इम्बैलेंस। अंडरस्टैंड? नाउ we know about the acidosis and alkalosis. A decrease in pH below normal is known as acidosis, as I discussed just now. Normal pH least range is 7.35. When pH goes below 7.35, the condition is called acidosis. An increase in pH above normal is known as alkalosis. The highest point of the normal range is 7.45. When pH goes above 7.45, the condition is known as alkalosis. Understand? What is acidosis and alkalosis? We can define in this way. Now, increase or decrease in carbonic acid causes respiratory acidosis or respiratory alkalosis. जब कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगी, और कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन घटेगा तो अल्कोलोसिस होगा। बिकॉज कार्बोनिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PCO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, और कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होगा या PCO2 कम होगी तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा। इसको नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख सकते हैं। Yes, see here, carbonic acid directly proportional to PCO2. The normal range of PCO2 is 35 to 45 mm of Hg. When this is the least value of the range 35. When PCO2 concentration goes below 35, carbonic acid concentration will low. That means pH will be high. The condition will be respiratory alkalosis. In opposition, when there is 45 mmHg, the highest value of normal range of PCO2, when the PCO2 concentration goes beyond 45 mmHg, the carbonic acid concentration will be high. जब कार्बोनिक एसिड concentration ज़्यादा होगा तो pH will be low. That means condition will be acidosis. And PCO2 is a respiratory component, so it is called respiratory acidosis. So PCO2 is directly proportional to carbonic acid. हम PCO2 की बात करते हैं और इसकी वैल्यू हम 35 to 45 दिमाग में रखते हैं, तो हमको कार्बोनिक एसिड भी दिमाग में रखना चाहिए। इसी बेस पर हम अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस। नाउ सेकंड कंडीशन इज a decrease or increase in bicarbonate causes metabolic acidosis or metabolic alkalosis. बाइकार्बोनेट कम होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन होगी, और बाइकार्बोनेट इंक्रीज होता है द कंडीशन विल बी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अंडरस्टैंड? देखते हैं कैसे।
See here, this is the normal range of bicarbonate 22 to 26 millimole per liter. When the bicarbonate concentration goes below 22 millimole per liter, that means pH will be low, 7.35. The condition will be metabolic acidosis. When the bicarbonate concentration goes above 26, the condition will be metabolic alkalosis, because the pH will be high beyond 7.45. Understand? Yes. Now these are the 4 type of acid base imbalances. These are very important, and listen carefully. Respiratory acidosis and respiratory alkalosis, both are subdivided into acute and chronic. Acute respiratory acidosis and chronic respiratory acidosis. Respiratory alkalosis, acute respiratory alkalosis and chronic respiratory alkalosis. इन चारों के अलग अलग पॉजिटिव एजेंट हैं, किस किस कारण से होता है वी विल डिस्कस सून. मेटाबॉलिक एसिडोसिस further divided into 2 classes on the basis of the anion gap. So metabolic acidosis with normal anion gap, and second one is metabolic acidosis with increased anion gap. anion gap क्या होता है, इसको समझ के फिर हम metabolic acidosis को डिस्कस करेंगे. And fourth one is metabolic alkalosis. So 4 type of acid base imbalance will be studied: respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis and metabolic alkalosis. Okay, let us see. Therefore, as we know that the pH of plasma is 7.4. The 7.4 pH of plasma is actually a buffer, carbonate, and it is a carbonate buffer. There is the salt and acid, there is the bicarbonate and carbonic acid. The ratio of bicarbonate and carbonate is maintained 20:1. So whenever it maintained, the pH always maintains 7.4 automatically. So carbonate is the metabolic component and bicarbonate is the respiratory component. Remember it, this is the 2 type of component, or both are the different factors, comes from different components. So bicarbonate is the metabolic factor and carbonic acid is the respiratory factor. So see here, this is the metabolic, when bicarbonate increase 22, suppose 2240, bicarbonate concentration 2640 यदि होती है, that means ये क्या हो रहा है, और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 से 2 इंक्रीज होगी. तो 20 से जब मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कंडीशन अल्कोलोसिस होती है, और ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट है इसलिए मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा. तो 20 से 40 होने पर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो रहा है, और रेस्पिरेटरी और कार्बोनिक एसिड इज रेस्पिरेटरी फैक्टर, तो इसलिए भी बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा. तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेट कर रहा है. सो 40/2, दैट मीन्स दिस रेशियो इज मेंटेन्ड हियर, द पीएच विल बी 7.4. इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में, इस रेशियो में 20:1 मेंटेन होगा कंपनसेशन से. मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस यदि क्रिएट हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस उसको कंपनसेट कर देगा और 7.4 पीएच मेंटेन करने की कोशिश करेगा. सो सी रेस्पिरेटरी कंपोनेंट कंपनसेट मेटाबॉलिक कंपोनेंट टू मेंटेन बॉडी पीएच 7.4. कैसे मेंटेन करेगा? थ्रू हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन. पीके की वैल्यू 6.1 है और इसका बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन प्लाज्मा में 24 होता है, कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन 1.2 होती है. इन दोनों का रेशियो 20:1 है. इसका जब वैल्यू निकालते हैं 1.3, विल ऐड 6.1 1.3, दैट पीएच विल बी 7.4 मेंटेन. As long as bicarbonate or carbonic acid ratio is 20:1, the pH would be remain 7.4. कैसे मेंटेन होता है ये हमने आपको डिस्कस किया है, इस एग्जांपल से हमने समझाया है, समझ में आया होगा आपको. ठीक है, रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. नाउ रीनल मैकेनिज्म ट्राइज टू कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कंपनसेट करता है, ध्यान रखिए. और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस जो डिसऑर्डर्स हैं इनको रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ट्राई टू कंपनसेट. तो रीनल मैकेनिज्म रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कंपनसेट करेगा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस को रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, रिमेंबर इट.
Now compensation is more effective in chronic disorders but is never 100%. Remember it, compensation is not a treatment. Compensation is the more effective in chronic disorder but it is never 100% in physiological or conditions. Now first is respiratory acidosis. This results from the accumulation of carbon dioxide. एसिडोसिस जैसा कि हमने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होगी. व्हेन कार्बोनिक एसिड विल इंक्रीज इन द बॉडी, दैट मीन्स हाइड्रोजन कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, और हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, दैट मीन्स pH विल बी डाउन, और pH जब कम होगा द कंडीशन विल बी एसिडोसिस. और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी फैक्टर है, इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में accumulation of carbon dioxide will create respiratory acidosis. अब ये किस किस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन बढ़ता है, उसी कारण से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ेगा. सो एक्यूमुलेशन कैन अकर ड्यू टू टू causes. Number 1, hypoventilation results in the decrease in the elimination of carbon dioxide. हाइपोवेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कम होगी, मीन्स एक्यूमुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ेगी. या फिर जो इंस्पायरिंग एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो. सो इंस्पायरिंग एयर हैविंग अ हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, दैट विल बी कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. जब इंस्पायरिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जा रहा है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन बढ़ेगी, एक्यूमुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी तो कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, दैट मीन्स एसिडोसिस बढ़ेगी. सो देयर इज द टू मेन कॉजेज टू क्रिएट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस: हाइपोवेंटिलेशन एंड इंस्पायरिंग एयर हैविंग अ मोर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ मूव clinically. As I told you, clinically respiratory acidosis classified into two groups depending on the severity: acute respiratory acidosis and chronic respiratory acidosis. दो प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया है, acute and chronic respiratory acidosis. One by one will discuss its causes. Acute respiratory acidosis can occur due to, these are the causative component of to create the acute respiratory acidosis. Number 1, collapse of lungs, pneumothorax, hemothorax, हेड इंजरी डिप्रेसिंग रेस्पिरेटरी सेंटर, ऐसी हेड इंजरी जिसमें रेस्पिरेटरी सेंटर इफेक्ट हो गया हो. ओवरडोज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, ओवरडोज ऑफ ऑपिएट्स, ओवरडोज ऑफ अल्कोहल और ओवरडोज ऑफ सेडेटिव्स दैट डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर. So that means the acute respiratory acidosis is directly related to respiratory center. Any component which affect respiratory center, the cause will be acute respiratory acidosis. Okay. Now chronic respiratory acidosis can occur due to bronchial asthma, emphysema, bronchitis and chronic bronchitis, myopathies, myasthenia and intracranial tumors. These are the causative factors of chronic respiratory acidosis. Learn it. Now when respiratory acidosis begins, कैसे होता है? PCO2 is elevated, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ेगा. एंड ब्लड बाइकार्बोनेट इज नॉर्मल, इसमें ब्लड बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज में रहेगा. एंड pH इज डिक्रीज्ड. सो दिस द थ्री फैक्टर्स व्हेन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बिगन्स. PCO2 बढ़ जाता है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहेगा और pH कम हो जाएगा. क्यों? जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन फिजियोलॉजिकल वाटर दैट कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक एसिड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज. और जब कार्बोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ेगी दैट मीन्स हाइड्रोजन कंसंट्रेशन विल इंक्रीज. और जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? pH कम होगा. pH कम होगा, दैट कंडीशन विल बी एसिडोसिस. तो ड्यू टू passive pressure of carbon dioxide, because it is a respiratory component and pH will be low, that acidosis. So when respiratory acidosis will create or begins,
when PuCO2 is elevated. Understand? Now kidneys compensate respiratory acidosis. अब किडनी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट करती है कैसे? दो कारण से, बाय द एक्सक्रीटिंग मोर हाइड्रोजन आयन इन यूरिन. जब हाइड्रोजन आयन बढ़ा है जब भी तो एसिडोसिस हुआ है, तो मोर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को यूरिन में एक्सेल करके इसको मेंटेन करने की कोशिश करती हैं किडनी. सो किडनी कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बाय नंबर 1 एक्सक्रीटिंग मोर हाइड्रोजन आयन्स इन यूरिन, नंबर 2 रिटर्निंग मोर बाइकार्बोनेट टू ब्लड. बाइकार्बोनेट को रिजॉर्प्शन करके उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. सो देयर आर टू कंपोनेंट्स by the kidney compensate respiratory acidosis. Number 1 excreting more hydrogen ion in urine and returning more bicarbonate to the blood. Remember it. Now in acute cases compensatory increase in bicarbonate is 1 millimole per liter for every 10 mm of Hg rise in PCO2. acute cases में जो compensatory हैं वो 1 millimole per liter बाइकार्बोनेट इंक्रीज करता है 10 mm of Hg बढ़ने पर. इन क्रोनिक केसेस कंपनसेटरी इंक्रीजेज इन बाइकार्बोनेट इज 4 millimole per liter for every 10 mm of Hg rise in PCO2. So this is the basic difference in compensation of acute case, acute respiratory acidosis and chronic respiratory acidosis. Okay, remember it. Now next one is respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis is least common acid base disorder, results from the decrease in partial pressure of carbon dioxide in the blood, and decrease in CO2 is due to hyperventilation. ज़्यादा सांस आ रही हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी, शरीर से ज़्यादा निकलेगी तो बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्कलोसिस कंडीशन होगी. रेस्पिरेशन के कारण हो रही है, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. अंडरस्टैंड? नाउ क्लिनिकली रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस also classified into two groups depending on its severity: acute respiratory acidosis, acute respiratory alkalosis and chronic respiratory alkalosis. This is the factor of acute respiratory alkalosis. Acute respiratory alkalosis can occur due to number 1 hysterical hyperventilation, encephalitis, meningitis, cerebrovascular accident, pneumonia and salicylate poisoning early stage. salicylate poisoning early stage में acute respiratory alkalosis create करता है और salicylate poisoning later stage में metabolic acidosis with increase anion gap create करता है. ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है. अर्ली स्टेज ऑफ सैलिसिलेट पॉइजनिंग कॉजेज acute respiratory alkalosis and later stage of salicylate poisoning causes metabolic acidosis with increased anion gap. इसको ध्यान रखिए. Okay, so these are the causes of acute respiratory alkalosis. Now chronic respiratory alkalosis can occur due to severe anemia, cardiac failure, heat exposure and overdose of mechanical ventilators. Now when respiratory alkalosis begins, कब से शुरू होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिक्रीज, PCO2 कम हो and blood bicarbonate is normal and pH is increased. PCR partial pressure of carbon dioxide यहाँ कम हो रहा है. partial pressure of carbon dioxide is going below. That means अब कम क्यों हो रहा है? हाइपर वेंटिलेशन कारण. हाइपर वेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल रही है सांस के द्वारा. जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है दैट मीन्स सांस ज़्यादा तेज चल रही है, तो हाइपर वेंटिलेशन. हाइपर वेंटिलेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा बॉडी में. जब कम होगा तो कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी बॉडी में कम होगी और कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो रही तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है. जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है दैट मीन्स पीएच बढ़ेगा. पीएच बढ़ रहा है दैट कंडीशन इज अल्कलोसिस. सो PCO2 इज डिक्रीज एंड पीएच विल इंक्रीज.
pH will increase, that means respiratory alkalosis. Okay. Now kidney compensate respiratory alkalosis by two way. Number one, excreting less hydrogen ion in urine. यूरिन में कम हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट होगा. रिटर्निंग लेस बाइकार्बोनेट टू द ब्लड. ब्लड में बाइकार्बोनेट की रिटर्निंग कम होगी. सो दिस द टू मैकेनिज्म बाय विच किडनी कंपनसेट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. रिमेंबर इट. इन एक्यूट केसेस कंपनसेटरी डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट, उसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्रीज हो रहा है. In acute cases, compensatory decrease in bicarbonate is 2 millimole per liter for every 10 mm of Hg decrease in PCO2. In chronic cases, compensatory decrease in bicarbonate is 4 millimole per liter for every 10 mm of Hg decrease in PCO2. Remember it, acute case और chronic case में 2 millimole और 4 millimole compensation होता है bicarbonate के द्वारा. Remember it. Now, third disorder is metabolic acidosis. It is a commonest disorder of acid-base imbalance. Can occur due to increased production of endogenous acid. Endogenous acid means शरीर में जितने भी मेटाबोलिक एसिड बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सेकंड थिंग इज डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ एंडोजेनस एसिड. जो एंडोजेनस एसिड हैं उनका एक्सक्रीशन बढ़ जाए, तो डिक्रीज एक्सक्रीशन एंडोजेनस एसिड. एंडोजेनस एसिड जो हो रहे हैं वो शरीर से बाहर निकलना कम हो जाए. थर्ड वन इज एंट्री ऑफ एक्सोजेनस एसिड. बाहर से खाने पीने में कोई एसिडिक कंपोनेंट या बेवरेज के थ्रू लेते हैं तो उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंक्रीज होगा. और लॉस ऑफ बेसिस, और बेसिस का लॉस कम हो बाय एक्रीशन. सो दीज आर 4 कंपोनेंट थ्रू विच मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन बी इंक्रीज और कैन बी स्टार्टेड. नंबर 1 मैं रिपीट करता हूँ, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एंडोजेनस एसिड, decrease excretion of endogenous acid, entry of exogenous acid and loss of bases. These are 4 factors which are responsible for creating metabolic acidosis. Now metabolic acidosis, patients with metabolic acidosis can be divided into 2 groups on the basis of the anion gap. Number 1 metabolic acidosis with normal anion gap and number 2 metabolic acidosis with increased anion gap. अब we should know about the anion gap. anion gap क्या है? डायरेक्ट anion gap पे भी एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, so remember it, समझिए इसको. anion gap is the difference between the plasma concentration of commonly measured cation sodium potassium and commonly measured anion chloride and bicarbonate. सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को जोड़ दें और उसमें से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के जोड़ को घटा दें तो 2 डिफरेंस आएगा. दैट डिफरेंस इज नोन एज एनायन गैप. समझ में आया? आगे देखिए, इसका इक्वेशन से समझते हैं. दिस इज द इक्वेशन. एनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम कंसंट्रेशन प्लस पोटेशियम कंसंट्रेशन. इसका जो भी एडिशन होगा उसमें से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के एडिशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो डिफरेंस आता है. दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एनायन गैप. Normally the sum of the sodium and potassium exceed the sum of the chloride and bicarbonate by about the 12 plus minus 4 milliequivalent per liter. Basically this is the normal range of anion gap, 12 plus minus 4 milliequivalent per liter. This is the equation, याद रखिएगा. The anion gap represents the concentration of unmeasured anions in plasma. Actually unmeasured जो anions हैं उनकी concentration रिप्रेजेंट्स करती है एनायन गैप. द एनायन गैप आर पायरुवेट, फॉस्फेट, सल्फेट एंड एनायनिक प्रोटीन्स. दीज आर द 4 मेजर ग्रुप कंपोनेंट विच क्रिएट एनायन गैप. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनायन गैप. सो मेजर अनमेजर्ड एनायन गैप वी कैन लर्न बाय PSPO. PSPO means protein, P for protein, S for sulfate, P for phosphate and O for organic acids.
So PSPO is responsible for measure unmeasured anion and they create the anion gap. प्रोटीन में एनायनिक प्रोटीन हो सकते हैं, दो अल्बुमिन, एंड ऑर्गेनिक एसिड में ऑर्गेनिक एनाइंस लाइक पायरुवेट एंड सम अदर organic acids which formed in metabolism in our body. Understand? In this diagram we can understand what the anion gap. There is sodium and potassium column. This is the other unmeasured cations. Here there is the chloride and bicarbonate column. Here unmeasured, this is the major anions PSPO. ठीक है, अब इसमें दिस सोडियम एंड पोटेशियम कॉलम ये है और बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का कॉलम ये है. इसमें से इसको घटाया, दिस द आयन गैप विच इज रिस्पॉन्सिबल बाय PSPO. अंडरस्टैंड? इट्स नॉर्मल रेंज इज 12 प्लस माइनस 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अंडरस्टैंड? नाउ मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल anion gap. In these patients, plasma bicarbonate is low, but anion gap is normal due to reciprocal increase in chloride. Hence, this condition is known as hyperchloremic metabolic acidosis. क्लोराइड इंक्रीज होने के कारण ये नॉर्मल anion gap रहता है, इसलिए this condition is known as hyperchloremic metabolic acidosis. So metabolic acidosis with normal anion gap is also called hyperchloremic metabolic acidosis because plasma bicarbonate is low but anion gap is normal due to the reciprocal increase of chloride. Understand? The causes of metabolic acidosis with normal anion gap are, these are the causative agents. Metabolic acidosis with anion gap: diarrhea, gastrointestinal fistula, intestinal obstruction, renal tubular acidosis, administration of ammonium chloride and carbonic anhydrase inhibitors, and addiction disease. These are the causative agents which causes the metabolic acidosis with normal anion gaps. When the disorder begins, metabolic acidosis किन कारणों से शुरू होता है? ब्लड बाइकार्बोनेट इज डिक्रीज, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो. जब बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम होती है तो बाइकार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, तो पीएच भी कम होगा. पीएच भी कम होगा तो कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगी. दैट मीन्स कंडीशन विल बी एसिडोसिस. और बाइकार्बोनेट मैंने आपको बताया है इट इज ए मेटाबॉलिक कंपोनेंट, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट होगा. ठीक है. क्लोराइड इज इंक्रीज एंड इसमें कंपनसेटरी क्लोराइड है, एंड PCO2 इज नॉर्मल एंड pH इज डिक्रीज्ड. These are 4 components which begins the metabolic acidosis with normal anion gap. Bicarbonate decreased, chloride is increased, PCO2 is normal and pH is decreased. Remember these 4 factors. Now respiratory compensation occurs by way of hyperventilation. Compensatory decrease partial pressure of carbon dioxide is 1.25 mm of Hg for every 1 millimole per liter decrease in bicarbonate. This is the compensatory result. Minimum इतना compensation होना चाहिए. Now metabolic acidosis with increased anion gap. अभी decreased anion gap था. Now second type of metabolic acidosis due to increased anion gap means सोडियम पोटेशियम से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का डिफरेंस बढ़ गया हो. किससे? 12 पॉइंट प्लस माइनस 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ये गैप बढ़ जाता है. उसके कारण से जो एसिडोसिस हो रहा है दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनायन गैप. दीज पेशेंट्स हैव लो ब्लड बाइकार्बोनेट. ब्लड बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम होगी एंड नॉर्मल क्लोराइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल है. Anion gap is increased due to the presence of the some abnormal and unmeasured anions. Unmeasured anions means PSPO. PSPO के बढ़ने के कारण anion gap क्रिएट हो गया है. अब anion gap क्रिएट हो गया है उसके कारण से जो एसिडोसिस होगा दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड anion gap. इसमें कार्बोनेट जो है वो कम होगा बाइकार्बोनेट और नॉर्मल क्लोराइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहती है. Now causes of metabolic acidosis with increased anion gap includes diabetic ketosis and ketoacidosis of starvation, alcoholic ketoacidosis,
and uremia, lactic acidosis, salicylate intoxication in later stage. Early stage में मैंने उधर बताया था, it is the later stage which causes the metabolic acidosis with increased anion gap. Intoxication with formic acid, oxalic acid, and intoxication by ethylene glycol, intoxication by paraldehyde, and intoxication of methanol, etc. जब आपको कभी न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि जहरीली शराब पीने के कारण कितने लोग मर गए, दैट मीन्स जहरीली शराब का मतलब देयर आर नॉट इथेनॉल, देयर आर मिथेनॉल कंटेंट वाज मोर, सो मिथेनॉल इंटॉक्सिकेशन कॉजेज द increase metabolic acidosis with increase anion gap. Understand? When the disorder begins, blood bicarbonate is decreased. Blood bicarbonate कमी होती है, chloride is normal and PCO2 is normal and pH is decreased. So respiratory mechanism compensate metabolic acidosis. The rate and depth of respiration is increased by hyperventilation से इसको कंट्रोल करते हैं. As a result PCO2 डिक्रीज, पार्शियल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा तो कार्बोनिक एसिड में कमी आएगी. सो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड रेशियो रिटर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये रेशियो 20:1 मेंटेन होने की कोशिश करते हैं और 7.4 pH मेंटेन रहता है और उसको नॉर्मल रेंज में लाते हैं. द कंपनसेटरी decrease in PCO2 is 1.2 millimole of Hg for every 1 millimole per liter decrease in bicarbonate. This is the compensatory value that compensated by the patients in every 1 millimole per decrease in the bicarbonate. Now metabolic alkalosis. This is the fourth type of disorder of acidosis imbalance. It can occur from loss of acid बॉडी से निकल रहा हो, और एक्सेस ऑफ बेसिस या सॉल्ट्स की या बेसिस की क्षारों की बढ़ोतरी हो रही हो. These are the two causes of metabolic alkalosis. That means loss of acid and increase of basis. Loss of HCl due to a severe vomiting, this is the one cause, and prolonged gastration aspiration. नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज ऑफ एंटास्टिक जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड पोटेशियम डेफिशिट. दिस आर द 3 कॉजेज विच क्रिएट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. लॉस ऑफ एसिड टू द सीवियर वोमिटिंग, प्रोलॉन्ग गास्ट्रिक एस्पिरेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटास्टिड एंड पोटेशियम डेफिशिट. नाउ व्हेन डिसऑर्डर बिगन्स, ये मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस शुरू का होता है. ब्लड बाइकार्बोनेट इज हाई, क्लोराइड इज रेसिप्रोकली लो, PCO2 इज नॉर्मल एंड pH इज इंक्रीज्ड. जब हम देखते हैं बाइकार्बोनेट हाई, जब बाइकार्बोनेट हाई हो रहा है दैट मीन्स pH भी इंक्रीज होगा, बिकॉज बोथ आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो pH ब्लड बाइकार्बोनेट इज हाई, दैट मीन्स pH इज हाई. ठीक है, और PCO2 इज नॉर्मल एज क्लोराइड इज रेसिप्रोकली लो. सो दीज आर द 4 causes that begins the metabolic alkalosis. Respiratory mechanism compensate metabolic alkalosis by decreasing the rate of respiration or by decreasing the depth of respiration. तो respiration की depth और rate को decrease करके रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को कंपनसेट किया जाता है. नाउ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटेन्ड, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिटेन हो, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड इज ब्राउट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रेशियो मेंटेन हो 20:1. कंपनसेटरी इंक्रीज इन PCO2 इज 0.75 mm of Hg फॉर एवरी 1 millimole per liter, इंक्रीजिंग इन बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट को बढ़ा करके वो कंपनसेट करता है. ये इसकी रेंज है कि PCO2 जब इतना बढ़ेगा तो 1 millimole per liter इंक्रीज होगा बाइकार्बोनेट. दिस इज द कंपनसेटरी लिमिट. नाउ दिस द ब्लड केमिस्ट्री इन एसिड बेस्ड डिसऑर्डर. इस टेबल को समझिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस द डिसऑर्डर और 4 डिसऑर्डर: रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस.
हियर इन फर्स्ट केस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इन एसिडोसिस है, इसका मतलब पीएच इज गोइंग डाउन, पीएच कम हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा। कार्बोनिक एसिड कब बढ़ेगा? जब PCO2 इंक्रीज होगा। जब PCO2 इंक्रीज हो रहा है तो कार्बोनिक एसिड बढ़ रहा है, कार्बोनिक एसिड बढ़ रहा है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब इसको कंपनसेट कैसे करेगा? तो कंपनसेटरी कंपोनेंट इज मेटाबॉलिक कंपोनेंट। तो मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट विल इंक्रीज, बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा तो जो उसको पीएच को कंपनसेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक एसिड इंक्रीज हो रहा है तो बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज होगा, तभी तो कंपनसेशन हेंडरसन है कि एसिड बेस के उसमें बताया ना हमने, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ के उसको कंपनसेट करती है, इसीलिए पीएच 7.4 पर मेंटेन करेगा। दैट मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दिस द टू फैक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड दिस द कंपनसेटरी फैक्टर विल इंक्रीज, बाइकार्बोनेट विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। अल्कोलोसिस है, इसका मतलब पीएच बढ़ रहा है। पीएच कब बढ़ रहा है? जब कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 कम हो रहा है। PCO2 कम हो रहा है मीन्स कार्बोनिक एसिड कम होगा। कार्बोनिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PSO2, मैं कई बार बता चुका हूँ। जब कार्बोनिक एसिड कम हो रहा है दैट हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो रही है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो रही है मीन्स पीएच इंक्रीज हो रहा है। पीएच इंक्रीज हो रहा है PCO2 के कारण, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस को कंपनसेट करेगा बाइकार्बोनेट कम होकर के, बाइकार्बोनेट कम होगा तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कंपनसेट होकर के पीएच को 7.4 पर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ फोर्थ वन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस मीन्स पीएच इज गोइंग डाउन। किसके कारण से डाउन हो रहा है? बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पीएच, मैं बता चुका हूँ। तो बाइकार्बोनेट इज मेटाबॉलिक कंपोनेंट। ये इसकी कंसंट्रेशन यदि प्लाज्मा में कम हो रही है तो पीएच भी कम होगा, पीएच कम होगा बाइकार्बोनेट का कारण, दैट इज मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए PCO2 कम होगा, मीन्स कार्बोनिक एसिड कम होगा। कार्बोनिक एसिड कम होगा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से एक्सपेल होगी, ज़्यादा निकलेगी। मतलब हाइपर वेंटिलेशन के द्वारा हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट कर सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी मीन्स कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होगा, मीन्स हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच जो कम हुआ है वो बढ़ेगा, उसको कंपनसेट करेगा। ठीक, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल कंपनसेट बाय डिक्रीजिंग द PCO2 और हाइपर वेंटिलेशन। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस मीन्स इंक्रीजिंग पीएच इन द ब्लड। और पीएच किस लिए बढ़ रहा है? बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसलिए पीएच बढ़ रहा है। दैट मीन्स बाइकार्बोनेट इज द मेटाबॉलिक कंपोनेंट, metabolic component increasing and which is responsible for increasing pH, that means metabolic alkalosis. It is compensated by hypoventilation, means increasing the PCO2. hypoventilation में partial pressure of carbon dioxide increase होगा, that will compensate metabolic alkalosis. Understand? This is the pH, this is the disorders, this is the pH की किस disorder में pH की condition क्या होगी, this is the factor which responsible for deviating the blood pH, and there is a compensatory factor which control the normal pH. Now this is the other type of disorders which sometimes seen in the complicated cases, mixed acid base disorder. Some patients may have 2 or more diseases affecting acid base balance. कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिनमें कई कारण से acid base balance create होता हुआ। These can produce independent changes in acid base balance. जैसे a diabetic with renal complications or an independent renal diseases may develop metabolic acidosis due to ketosis, metabolic acidosis due to renal disease. कीटोसिस के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस सेम पेशेंट में हो रहा है और उसी पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस रीनल डिसीज के कारण हो रहा है। तो दिस इज द मिक्स्ड टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। द टू टुगेदर में रिजल्ट्स इन द सीवियर एसिडोसिस। दोनों एसिडोसिस बढ़ा रहे हैं, दैट इज सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। A diabetic, another type of diabetic with chronic obstruction of pulmonary disease may develop metabolic acidosis due to diabetes and respiratory acidosis due to lungs disease. So metabolic acidosis created by diabetes and respiratory acidosis created by lungs disease in the same patient. So the two together may result in the severe acidosis as
कंपनसेशन वुड नॉट अकर। इसलिए जो कंपनसेटरी है वही डिफॉल्टर हो रहा है, इसलिए कंपनसेशन नहीं हो पाता है। दिस इज द सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, अब इसके साथ जो डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं, इस पर केस स्टडीज़ एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे आते हैं, मोस्टली पूछे आते हैं। तो केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। एज आई टोल्ड यू कि दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड इनकी ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। पीएच का नॉर्मल रेंज है 7.5 टू 7.4, 7.35 टू 7.45, और PCO2 की नॉर्मल रेंज है, जो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, इसकी नॉर्मल रेंज 45 टू 35, एंड बाइकार्बोनेट की जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, इसकी नॉर्मल रेंज 22 टू 26। इसको मैंने उल्टा लिखा है, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी कंपोनेंट 45 जो एसिडिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और 35 जो है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अंडरस्टैंड? इसको 35 45 लिखते तो हमको बेसिक यहाँ लिखना पड़ता। रिमेंबर इट। केस स्टडी फर्स्ट, इसमें कुछ भी हो, केस स्टडी में कोई भी कहानी लिखी हो, लेकिन हमने उसमें से ये 3 चीज़ें निकाल ली हैं। कौन कौन सी? ABS, क्या? पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट। ये 3 चीज़ें हमें देखनी है रिपोर्ट में कि ये 3 चीज़ें कहाँ कहाँ उसकी कथा में लिखी हुई हैं, उसकी कहानी में लिखी हुई हैं। तो सपोज इन केस फर्स्ट पीएच इज 7.79, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 24 एंड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन 21। ये 3 कंपोनेंट आइसोलेट किए और हम इस प्रकार से मैट्रिक्स बनाएंगे, और इस मैट्रिक्स में हम यहाँ पर एसिड मीन्स एसिडोसिस और ये वाला कॉलम बेस मीन्स अल्कोलोसिस के लिए बना दिए। दिस इज द नॉर्मल, तो एसिड, नॉर्मल और बेस यहाँ पर लिख देते हैं, और ये 3 जो 6 कॉलम खाली हैं इसमें हम फिल करेंगे ये कंपोनेंट। तो देखिए पीएच इज हियर 7.79, इसका मतलब नॉर्मल रेंज क्या होती है? 7.35 टू 7.45 होती है, ये यहाँ लिखी हुई है 7.35 टू 7.45। इसका मतलब ये 7.45 से ज़्यादा है पीएच। पीएच इज 7.79, दैट मीन्स ये बेस वाले कॉलम में जाएगा, तो इस पीएच को हमने यहाँ बेस वाले कॉलम में लिख दिया, पीएच 7.79। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ PCO2 इज 24। अब PCO2 हम देखते हैं रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, ये है 24, तो इसकी रेंज है 45 टू 35। इसका मतलब 35 से कम है, 24 35 से कम है, इसका मतलब ये बेस में जाएगा, तो PCO2 को भी हमने बेस वाले कॉलम में लिख दिया। अंडरस्टैंड? बाइकार्बोनेट 21, तो बाइकार्बोनेट है ये, बाइकार्बोनेट 21 से 22 से नीचे है, मतलब 20 एसिडिक है, तो हमने इसको एसिड वाले कॉलम में लिख दिया। अब हम मेजोरिटी ऑफ इन तीनों में से देखेंगे मेजोरिटी किसकी है। तो बेस में हमको मेजोरिटी मिली है पीएच 7.79 और PCO2 24, तो बेस वाले में मेजोरिटी मिली है हमको ज़्यादा। 2 लोग हैं इसमें, 2 फैक्टर इसमें आए हैं, दैट मीन्स ये कंडीशन अल्कोलोसिस है। दिस कंडीशन इज अल्कोलोसिस। और हमने बताया PCO2 किसका फैक्टर है? रेस्पिरेटरी फैक्टर है, तो अल्कोलोसिस कौन सा अल्कोलोसिस? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब ये 21 इसने जो है 22 के नियरेस्ट पहुंच गया है कंसंट्रेशन, सो पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। यदि ये 22 पहुंच जाता तो नॉर्मल में आ जाता, इसका मतलब ये कंपनसेट तो कर रहा है लेकिन कुछ कुछ कर रहा है, दैट मीन्स पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड केस, सी हियर, पीएच 7.17, PCO2 इज 35 एंड बाइकार्बोनेट इज 12। अब इसी मैट्रिक्स में हम इनको फिल करते हैं, तो 7.75 जो है वो 7.35 से कम है, इसको एसिड वाले कॉलम में रखेंगे। PCO2 35, PCO2 35 है, इसका मतलब ये बेसिक वाले कॉलम में ये नॉर्मल में है, नॉर्मल रेंज है ये 45 टू 35, तो हमने इसको PCO2 को नॉर्मल रेंज में रखा, इट इज नॉर्मल रेंज, ठीक है। और बाइकार्बोनेट 12, तो बाइकार्बोनेट 22 से कम है, दैट मीन्स किसमें? एसिडिक कॉलम में आएगा, तो इसको हमने एसिड को रखा, ठीक है। तो मेजॉरिटी इज गोइंग टू एसिडिक कंडीशन, दैट मीन्स द कंडीशन इज एसिडोसिस, और बाइकार्बोनेट इज अ मेटाबॉलिक फैक्टर, सो इट इज कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। और जो PCO2 कंपनसेट करना चाहिए था वो नॉर्मल में बैठा हुआ है, दैट मीन्स ये कंपनसेट नहीं कर रहा है, दैट्स अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज अनकंपनसेटेड, ये केस कैसा केस है? अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है। अंडरस्टैंड? नाउ
ये तीसरा केस देखते हैं। इस तीसरे केस में pH 7.45 है। 7.45 इज़ द नॉर्मल, बट इसमें ये बेसिक को टच कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि 7.35 और 7.45 का मीन निकाला है तो हमको 7.4 मिलेगा, ठीक है। 7.4 को हम न्यूट्रल मान लें, न्यूट्रल फिजियोलॉजिकल pH मान लेते हैं, और इससे थोड़ा सा यदि आगे जाता है 4.5 होता है तो उसको हम बेसिक मान लेते हैं, और 7.45 से नीचे जाता है 7.35 होता है, इसको हम एसिडिक मान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 7.45 है, लेकिन इसको हमने रखा तो नॉर्मल में ही है, क्योंकि नॉर्मल रेंज कितनी है 7.35 और 7.45 है, इसको रखा हमने नॉर्मल में है, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मल रेंज में आ रहा है। अब हम देखते हैं किसको, PCO2। PCO2 इज़ द 48, PCO2 is range is 48, means is 45, it is bigger than 45, so it will go in acidic condition, acidic column. So PCO2 will put in acidic column. Okay, now third component is bicarbonate. Bicarbonate is 28, 20 is going beyond 26, that means it is will be put in basic column. So all three, one is in acidic column, one is in normal column, one is a basic column. Now how will decide it, the condition की कौन सी है, तो इसमें हम ये देखेंगे, इस pH का रोल देखेंगे। इसमें pH इज 7.45, 7.45 कहाँ है, ये एसिड से बेस की तरफ यदि हम जाते हैं तो 7.4 से जब थोड़ा सा आ जाएंगे तो बेसिक कंडीशन को है तो नॉर्मल, लेकिन ये बेसिक को लेकर आया है और हो नॉर्मल गया है, तो इसको हम कहेंगे दिस बाइकार्बोनेट इज मेटाबॉलिक कंपोनेंट, और ये बेस में बैठा हुआ है, इसलिए इसको द कंडीशन इज मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस। मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक pH है, ये बेसिक pH, इसलिए हम मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस कहेंगे। और चूंकि pH को नॉर्मल में लेके आया है, इसलिए फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस, इट इज़ ए फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस, क्योंकि pH नॉर्मल में आ गया है। क्यों, क्योंकि कंपनसेट किया है PCO2 ने, कंपनसेट किया है, इसीलिए pH 7.45 पे आया है नॉर्मल में। तो दैट मीन्स द कंडीशन वाज मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस बट फुल्ली कंपनसेटेड, सो फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक, अंडरस्टैंड, समझिए इस चीज़ को। नाउ दिस द फोर्थ केस, एक केस और करते हैं। 7.42, 7.42 मीन्स नॉर्मल, PCO2 40, PCO2 40 मीन्स नॉर्मल, ओके, एंड बाइकार्बोनेट 23, 22 से 26 के बीच में है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। ऑल द ABGs आर नॉर्मल, दैट मीन्स ABG नॉर्मल मीन्स हेल्दी सब्जेक्ट। इसका मतलब देयर इज नो एसिड बेस इम्बैलेंस टेकिंग प्लेस इन सच केस। इसमें 7.63 देखते हैं, 7.63 मीन्स बर्न बेसिक, तो इसको बेसिक में ले गए, बेस में ले गए। एंड PCO2 24, PCO2 24 है, 24 मीन्स इट इज़ बिलो 35, इसका मतलब ये बेस में है, ओके। बाइकार्बोनेट है 18, बिलो 22, इसका मतलब ये एसिड में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये अल्कोलोसिस है, कौन सा अल्कोलोसिस है, PCO2 रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, और ये कंपनसेट नहीं कर रहा है, इसलिए पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, क्योंकि PCO2 18 पे आया है ना, और उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, pH को और कम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, अंडरस्टैंड। सो these are the some cases which are discussed। इस प्रकार से कई केसेस आते हैं एग्ज़ाम में जिनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इन दिस स्लाइड आई एम गिविंग सम होमवर्क, सो ये दीज आर द फैक्टर्स, ये रिपोर्ट दी हैं, इन रिपोर्टों के बेस पर आप मैट्रिक्स बना करके यू गो थ्रू द फाइनल रिजल्ट एंड मैच दिस द रिजल्ट कि ये कैसे जाता है, ठीक है। इसको करेंगे, ट्राई करेंगे तो यू विल लर्न इट। Now some important question of acid base disorders or acid base balance. It may ask frequently in university examination. Number one, long essay. I have divided these all questions in long essay, short essay and short answer questions. In long essay question asked in mostly in 10th marks. Number, what is the normal blood pH? Write a notes on the blood buffer. And next is write how acid base balance is maintained in the body. Mention causes and biochemical alteration of metabolic acidosis. ये क्लियर किया हमने। Write in detail diagrammatically the reaction mechanism by which bicarbonate is reclaimed and retention in kidney. हमने
हमने बताया था आपको कार्बोनिक मैकेनिज्म किडनी किस प्रकार से पीएच मेंटेन करती है, डायग्राम बना के। व्हाट इज़ द मीन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाउ इट इज़ कंपनसेटेड, ठीक है, ये क्लियर किया हुआ है। नाउ शॉर्ट ऐसे इस क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। रोल ऑफ किडनी इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, किडनी का रेगुलेट रीनल मैकेनिज्म में 3 हमने बताए थे, बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, फॉस्फेट मैकेनिज्म एंड अमोनिया मैकेनिज्म। इन तीनों को डायग्राम बना के आप शो कर सकते हैं। एनायन गैप एंड इट्स डायग्नोस्ड इम्पोर्टेंस, एनायन गैप के बारे में बताया हमने आपको। एंड व्हाट इज द हेंडरसन हसलवेज इक्वेशन, पूरी इक्वेशन बताइए। डिस्क्राइब द बफर सिस्टम इन ब्लड एंड यूरिन, ये पूरा क्लियर किया हुआ है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या होता है, वो सॉल्ट अपॉन एसिड, बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड का रेशियो 20:1 होता है, जो 7.4 pH को मेंटेन करता है। नाउ रोल ऑफ लंग्स इन pH मेंटेनेंस, रेस्पिरेटरी रोल क्या है, लंग्स का रोल क्या है pH मेंटेनेंस में, है ना, ये हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन से मेंटेन करते हैं। राइट अबाउट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, इन दोनों को डेफिनेशन देनी है, इनका कंपनसेशन जो हमने बताए थे वो कंपनसेशन लिख देना। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इनका कंपनसेशन, ये सब चीज़ें हमने आपको क्लियर की हैं। शॉर्ट आंसर में जैसे टाइट्रेबल एसिडिटी हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर की थी, वहाँ पर क्यों भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। एनायन गैप आज बताया हमने। एल्कली रिजर्व्स लास्ट को लेक्चर में क्लियर किए थे। एंड कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या क्या कारण हो सकते हैं जो आज बताया हमने। हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड हाउ इट्स रेगुलेट द ब्लड pH व्हेन एडेड मोर अल्कली एंड एसिडिक एंड क्लोराइड शिफ्ट, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। इन क्वेश्चंस के अलावा केस स्टडीज ऑन एसिड बेस इम्बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो मैनी टाइम्स इट में आस्क। केस स्टडी को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने कुछ एग्जांपल देके किए थे, यू विल ट्राई, आप कोशिश करिए केसेस को निकाल करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड डिस्कस टू अदर। ओके, थैंक यू, टेक केयर।